Hello students, these are the most important questions of the English plus 2, the last lesson. I bet you will study these 5 questions. You don't need anything to study from this chapter. The first question is, how did Fran's feelings change about M. Hamel and school? फ्रांस की फीलिंग्स कैसे चेंज हुई स्कूल और एम हेमल जो उसका टीचर था उसके बारे में उसकी फीलिंग्स कैसे चेंज हुई? जब फ्रांस को पता लगा, when the France came to know that it was the last lesson of the M. Hamel, because it was an order from the Berlin to ban the French language. So when he came to know that it was M. Hamel last lesson, so he regretted because he never focused on his class, never focused on class and not learning, and he was sorry for not learning his lesson properly. So on the last day of lesson, his feelings changed for school and M. Hamel. So question number 2 is, what was tempting France to keep away from the school on the last lesson? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो फ्रांस को दूर रख रही थी स्कूल से लास्ट डे ऑफ लेसन के दिन? France hated attending the school. France hated attending the school. He wanted to go out in the sunlight, bright day, and he wanted to listen the chirping of the birds. He also wanted to see Prussian soldiers who were drilling, and he wanted to go out and look them. So it is a very easy question कि फ्रांस को कौन सी चीज़ थी जो दूर रख रही थी स्कूल जाने से? वो यही थी that he wanted to go out on the bright day to listen to the chirping of the birds, and he also wanted to see Prussian soldiers who were drilling. Okay, the question number 3 is, what did M. Hamel tell his students about the French language? What did he ask them to do and why? जो M. Hamel ने क्या चीज़ बताई स्टूडेंट्स को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, क्या चीज़ें बताई? Hamel told them that French was the most beautiful language in the world. It was the clearest and the most logical language. He asked them to guard it among them and never forget it. So these points are very clear that what Hamel told about French language to the students, you have to learn this point directly and you will get the marks. You don't have to write anything. So question number 4 is, what did Hamel teach his students in the last lesson? What impact does it have on the students? जो हेमल था उसने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया लास्ट लेसन के दिन, क्या इम्पैक्ट पड़ा उनका उस लेसन का स्टूडेंट्स पे? तो हेमल ने उन्हें ये बताया लास्ट लेसन के दिन कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज है वर्ल्ड में. आप इसको अपनी लैंग्वेज में इलेबोरेट करके लिख सकते हैं. और जो स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ा वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि एग्जाम्पल ले लो, जो फ्रांस था उसने कभी भी उसके लेसन्स या फिर कह लो कि उसके लेक्चर्स को कभी भी सीरियसली नहीं लिया. और जब उसे पता चला, व्हेन फ्रांस केम टू नो दैट इट इज़ द लास्ट लेसन ऑफ एम हेमल, देन ही रिग्रेटेड that he never learned his lectures properly. He never gave attention to him. So last lesson had great impact on France. This point is also clear, students. Question number 4 is very easy कि जो M. Hamel है उन्होंने स्टूडेंट्स को लास्ट लेसन के दिन क्या पढ़ाया है. जो M. Hamel है उन्होंने स्टूडेंट्स को लास्ट लेसन के दिन क्या पढ़ाया और उस पढ़ाने के बाद उन स्टूडेंट्स पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा. क्वेश्चन नंबर 5 इज, जो लास्ट लेसन था वो कैसे डिफरेंट था अदर लेसन से? हाउ वॉज द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेसन? तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं. आप डायरेक्ट पॉइंट्स लिखो, आप डायरेक्ट पॉइंट्स लर्न करो और अपने वर्ड्स में उन्हें लिख दो थोड़ा इलेबोरेट करके. तो फर्स्ट पॉइंट कैन बी, हिज ड्रेस एंड एज वेल एज बिहेवियर बोथ वर डिफरेंट ऑन द लास्ट लेसन.
अब सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ही वॉज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट विद अ फ्रिल्ड शर्ट। डेली वो ऐसे कपड़े नहीं पहनता था, जो एम हेमल थे वो डेली ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। उनका बिहेवियर एज वेल एज ड्रेस दोनों चेंज थी। लास्ट लेसन के दिन उन्होंने ग्रीन कोट पहना था विद फ्रिल्ड शर्ट। अब थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, द विलेजर्स हैव कम टू अटेंड हिज लास्ट लेसन एज अ मार्क ऑफ थैंक। जो लास्ट लेसन के दिन विलेजर्स उसके पास आए थे, उन्होंने लास्ट लेसन को अटेंड किया। क्यों किया? थैंक करना चाहते थे वो हेमल को, उसकी 40 ईयर्स की सर्विस के लिए थैंक करना चाहते थे वो विलेजर्स। और फोर्थ पॉइंट ये लिख सकते हैं आप, मिस्टर हेमल यूज टू हैव अ स्टिक इन हिज हैंड बट द डे ही kept it under his arm. He would be very strict on usual days. जो एम हेमल थे वो वेरी स्ट्रिक्ट थे यूजुअल डेज में, पर ऑन द लास्ट डे, ऑन हिज लास्ट लेक्चर ही वॉज वेरी सॉफ्ट एंड हिज वर्ड्स वर हैड अ मैजिक। जो उसके टोन थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी और जो उसके वर्ड्स थे उसमें मैजिक था। अब फिफ्थ पॉइंट ये लिख सकते हैं आप, जो उसकी एनर्जी थी वो बहुत ही लो थी, बिकॉज उसे दुख था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बैन कर दी जा रही है। और आप कंपेयर करें यूजुअल डेज में उसकी एनर्जी बहुत हाई रहती थी। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो उस दिन लास्ट लेसन के दिन उसकी एनर्जी बहुत लो थी क्योंकि वो दुखी था, परेशान था फ्रेंच लैंग्वेज के बैन होने पर। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट थे इस क्वेश्चन के, जो कि आप इजीली याद रख सकते हैं। और द लास्ट लेसन से 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये 5 क्वेश्चन करते हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप को पछताना नहीं पड़ेगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।